Hello students, this is a part second of 7th standard science chapter 5 matter and chemical formula. So in the previous video we couldn't do the definition of molecule, so we'll try to do it here. And as discussed, we studied about atom क्या होते हैं, आपके smallest particle होते हैं किसी matter के form के. Then molecule, again we have the definition, is they are the smallest unit of matter which can exist independently. By this word existing independently, इसका मतलब क्या बनता है? It means कि यार whenever the atoms are there, right, in the nature, there are definitely atoms present over there in the form of matter, but they cannot exist independently. They have to combine together with different type of atoms to form a molecule, right? अगर मैं individual atom को separate करना चाहूँ, it is very 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 difficult, extremely difficult. So what happens in nature, different type of atoms, they combine together, and they form a molecule, and molecule is having a proper existence in the nature, right? We'll look at it, right? अब होता क्या है, like the atoms which are combining, they can be of same type or they can be of different type, है ना? Okay. Depending on that, they can be a molecule of an element or of a compound. Now these are the words that you are hearing for the first time, and then we'll look at the definition of element and molecule, and we'll try to come back to the element and compound, and we'll come back to the definition of molecule again, right? As of now, you can remember, like when atoms are combining together, they'll form a molecule, and the combining atoms to form which are forming a molecule can be of same type of or can be of different type, right? Now there was a slight misunderstanding, or you can say confusion part, जब हम दोनों के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? एंड दिस confusion, you can say, can be avoided by understanding a simple concept, right? Now if you consider a English sentence, proper English sentence, like I'm using a simple one, it means like we are learning. So this is a proper sentence which is having a three different type of words, right? So you remember, in this sentence there are three different type of words, and each words again are made up of different type of alphabets, or you can say characters, right? Right, again, if I'm telling V, right, it's like W and me, made up of W and V. If I'm telling about R, it is made up of A and R and E. And if I'm looking at learning, right, it is again made up of 8 alphabets, you can say LEARNING, right? So what happens here, right? If I'm looking at any character of English language from A to Z, okay, individually if I'm talking about, it doesn't make up any sense, कोई sense नहीं बनेगा, and there won't be any word proper, there won't be any meaning to it properly. But when you are combining them and forming different type of words, उसका एक proper sense बनता है, right? एक meaning आपको समझ में आता है. So from that point of view, if you are able to understand, basically what happens is these words together are called as molecules, and the individual alphabets can be categorized as atoms, right? So again, what I have done here is, like, if you are looking at this sentence, is made up of three words which are having proper meaning. So I can say there are three different type of molecules, and each molecules are having different type of atoms. So it is not like only two atoms will combine and form a molecule. There will be there is no specification. There can be n number, up to 12, 13, 14 number of atoms can combine together to form a molecule, and they can be of different types also. Okay. Now moving on to the matter, if you have to classify matter can be categorized in the, like, whatever things are present around you can be said as pure substances, or they can be categorized as mixture. And when we are talking about pure substance, they are further classified into two categories, that is your element and compound. So if I'm telling about element, what does an element means? Element का मतलब है that first of all it is a pure substance, right? इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, and it is consisting of only one type of atom. मतलब क्या हो गया, right? देखते हैं क्या मतलब इसका, consisting of only one type of atoms. So atoms of an element are not the same as the atoms of other element, and oxygen, okay, and oxygen element will be composed of only oxygen atoms, and there are 118 type of elements. Now understand, right? We understood कि भाई matter को आप दो category में divide कर सकते हैं. First is your pure substance, and second is your mixture. So if I'm talking about pure substance can be definitely an element or a compound. So looking at element, I'm telling it is a pure substance, and it is having only one type of atoms. तो इसका मतलब क्या है? In nature, in our on our earth, if I'm telling, there are different 118 type of elements which are present in the nature, right? And all the 118 type of elements are having different type of atom. For example, there are different type of elements like hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen. So ओके, ये तो पता लग गया कि एलिमेंट है, और हर एलिमेंट का क्या होगा, अपना अपना एटम होगा, राइट? एंड हाउ दोज एटम्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर. बेसिकली वी रिमेंबर अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना? हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था. So there might be difference in the number of subatomic particles which will make them to fall into the different categories of different elements. यानी कि भाई, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कि ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन के अंदर कुछ नंबर ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स होगा. हाइड्रोजन के अंदर भी क्या होगा, पार्टिकल्स तो वही होंगे, बट उनकी नंबर्स क्या होंगी, कम या ज़्यादा हो सकते हैं. उसी तरीके से आपके 118 टाइप के एलिमेंट हैं, तो हर एलिमेंट का क्या होगा, अपना अपना एटम अलग अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन दैम. ओके. Now moving on to compound. So what exactly is a compound?
व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन डेफिनेट रेशियो केमिकली। अब यहाँ पे केमिकली का दे रखा है, केमिकली का मतलब क्या हो गया, देखते हैं चलो। जाइए, आपको पता लग गया कि भाई एटम्स होता है, एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, दे कैन बी ऑफ सेम टाइप और दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप एंड दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, राइट। देन वी स्टडीड अबाउट एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब हमें पता लग गया कि देयर आर 118 टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट इज हैविंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ atom depending upon the number of subatomic particles. So compound is something when two different elements are combining. When two different elements are combining in definite ratio chemically, they are called as compound, right? अब कंपाउंड के बारे में एक अच्छी प्रॉपर्टी ये आती है कि इफ टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग, फॉर एग्जांपल हैव टेकन एलिमेंट ए प्लस एलिमेंट बी इज कंबाइनिंग एंड दे आर फॉर्मिंग ए कंपाउंड। तो राइट, एलिमेंट ए की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, एलिमेंट बी की कुछ अपनी अलग प्रॉपर्टीज होंगी, एंड व्हेन दे विल कंबाइन केमिकली, राइट, दे विल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज. That's what you can understand from this pictorial diagram, right? When two different elements are combining and forming a compound, all the properties of each of them individually will be different from each other. And uh, what exactly it means chemically? Chemically का मतलब क्या हुआ है, देखिए, whenever there is a chemical reaction, we have studied about the physical change and chemical change. So at your level I'll just say कि when we are talking about a chemical change, basically there is the involvement of electrons. There would have been some pakka sure you can say exchange of electrons between the atoms of different elements, राइट. अब आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए, आपके एलिमेंट हैं, एलिमेंट के आपके क्या होंगे बेटा, एलिमेंट के अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे. अब वो एटम्स कहीं ना कहीं दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में कंबाइन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ होगा, राइट. और जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ होगा तो उसके कारण क्या बनता है आपका भैया, आयन वायन बने होंगे, फिर बॉन्ड बना होगा, फिर आपका एक नया सब्सटेंस बना है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, डिफरेंट है. सो एनी रिएक्शन विच इज इन्वॉल्विंग, एनी रिएक्शन विच इज इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, you can say that is called, that comes under the category of chemical reaction, right. Now there are definitely some properties of you can say compound, right. And properties are like some same combination of elements combined in a fixed proportion by mass irrespective of the source it is obtained. Okay, I forgot to mention about this thing also here, definite ratio, and this thing will come together, right. So what it means कि भाई same combination of elements combined in a fixed proportion by mass irrespective of the source it is obtained. For example, if I am talking about water, अगर मैं पानी की बात करता हूँ, राइट, तो वाटर का स्ट्रक्चर इफ यू रिमेंबर, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ three two different type of elements. Basically hydrogen is present and your ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. और हाइड्रोजन के आपके दो एटम होते हैं, एंड आपकी ऑक्सीजन का कितने होते हैं बेटा, एक एटम होता है. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक आपके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या बन जाते हैं, यू कैन टेक इट फ्रॉम योर टैप वाटर, आप अपने आरओ का पानी ले सकते हैं, यू कैन टेक द वाटर फ्रॉम योर ओशन, सी और रिवर, राइट. देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, बट वेन एवर यू आर एबल टू सेपरेट आउट, right, separate out the one molecules, right, or different compounds, exactly, आपको मिलेगा क्या कि अगर आप एक मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं वाटर के, तो हमेशा आपको दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम किसका मिलेगा आपको, ऑक्सीजन का. तो रेशियो विल बी 2:1, राइट. हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, तो रेशियो इज 2:1. एंड देयर इज वन मोर एग्जांपल दैट यू कैन से, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड. सो व्हेनेवर कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइनिंग, द केमिकल फॉर्मूला दैट विल सी इज CO2. तो बेसिकली आपका कार्बन एलिमेंट भी होता है और आपका ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट होता है. And exactly, and technically what happens is like carbon atom will combine with two hydrogen atoms, right. So there the ratio is 1:2, right. And carbon dioxide something like it is found in the nature and you can prepare it chemically in the labs and all, but जो आपको composition मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमेशा आपको same मिलेगा, right. Now second property is telling like properties of the compounds different from those of its constituent. ये तो हमने इसके स्ट्रक्चर में भी देखा था कि भाई जो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग होंगी, और आपकी जो फाइनल आपका कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग होंगी. Now looking at the example of water, right. Water, how it is formed, it is combined like hydrogen element and oxygen element are combining and they are forming your water, which is a compound basically. So if I am telling like hydrogen की characteristic property होती है which we'll study in the upcoming classes, कि whenever it is burnt, right, अगर आप हाइड्रोजन गैस को सेपरेटली बर्न करते हैं तो एक पॉपअप साउंड आती है. वो कैसी होती है, ये वाली जो कैंपा कोला वाली आवाज करते हैं ना, एक पॉप साउंड आती है, राइट. एंड whenever this oxygen is there, right, oxygen basically helps in burning, और it can say it helps in the combustion. किसी भी चीज़ को जलाने के लिए आपकी काफ़ी रिक्वायरमेंट गैस है, रिक्वायर्ड गैस है आपकी, सॉरी. और अगर हम बात करें पानी की, तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि पानी से आप क्या करते हैं, आग बुझाते हैं बेसिकली. तो राइट, यहाँ पे आप कह रहे हैं एक जब बर्न कर रहा है तो पॉपअप साउंड के साथ बर्न कर रहा है, एक आपकी आग जलाने में हेल्प कर रहा है, और एक पानी है आपका जो आपका नया कंपाउंड बना है दो एलिमेंट से कंबाइन होने से, वो पानी को आग को बुझाने में आपकी हेल्प कर रहा है. तो इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या आपकी अलग अलग हैं. Now, constituent elements of a compound cannot be separated by simple physical methods. इसका मतलब क्या है कि भाई आपने अगर एक कंपाउंड लिया तो आपको पता है कि कंपाउंड के अंदर आपकी क्या है, डेफिनेटली कुछ आपकी
एलिमेंट्स हैं आपके, हाँ है ना। अब उन एलिमेंट्स को आप सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड्स का यूज़ नहीं कर सकते। और फिजिकल मेथड का मतलब क्या बन जाता है? द मेथड्स विच आर affecting or which will change the physical properties. And by what do you mean by physical properties? They can be anything which are related to your size, shape, color, texture. Those properties, if they are affecting any method is affecting, that method comes under the category of physical method, right? For example, you cannot separate hydrogen and oxygen from the water by using filtration or by using evaporation, right? For example, cause आप जानते हैं कि फिल्ट्रेशन में आप कुछ नहीं करते हैं, यू आर जस्ट सेपरेटिंग द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट, राइट? आप रोड़े पत्थर को अलग करते हैं। एंड इफ आई एम टेलिंग अबाउट इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस, इट इज जस्ट लाइक आप क्या कर रहे हैं, उसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं, राइट? फ्रॉम वाटर टू गैसेस फॉर्म यू आर कन्वर्टिंग, राइट? बेसिकली वो पानी का ही भाप होता है, वाटर वेपर वी यूज द वर्ड। तो यू आर नॉट चेंजिंग द केमिकल composition, only the distance between the particles has increased, right? So that is the third property. अब एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है आपका। फॉर एग्जाम्पल ऑन दिस स्क्रीन इफ आई एम हैविंग थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, राइट? अब आप समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट वन इज माई रेड ब्लू कलर, सेकंड इज रेड कलर, थर्ड इज ब्लैक कलर। तो हुआ क्या भाई, आपके एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हो गया। तो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे गए वो भी देखेंगे, राइट? एलिमेंट आपके बन गए भाई। इसमें देखिए आपका क्या है, खाली आपके सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, यानी कि सारे बस देखिए ब्लू कलर वाले एटम्स हैं आपके। सेकंड वाला अगर आप देखें एलिमेंट जो है आपका, इसमें खाली बस आपके रेड कलर, यानी कि एक एलिमेंट क्या होता है जिसके अंदर सारे एटम्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। थर्ड इज योर ब्लैक कलर्ड वन। तो राइट, व्हेन दीज थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग, तो आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो आपके अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन कर सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं भाई, दो से ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम दो या दो से ज़्यादा। तो कंपाउंड की अगर हम बात देखें, फर्स्ट मैंने क्या कर दिया, आई एम हैविंग टू blue colored and two black colored. Then in the second one I'm having one red colored, two blue black colored, and one is blue colored. And in the last one if I'm having, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे पता है ब्लैक ब्लू और ब्लैक में डिस्टिंग्विश करने में, राइट? थर्ड वन इफ यू सी इट इज मेड अप ऑफ टू आर ब्लू एंड वन इज ब्लैक एंड वन इज ब्लू। तो अब यहाँ पे पूछेंगे आप लोग मॉलिक्यूल कहाँ पे आता है, राइट? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन जब अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये होता है, देखिए ना, वहाँ पे हमने बताया था कि आपके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कब होता है, जब आपके डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं। और जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं तो चांसेस क्या हैं कि देयर आर चांसेस कि वो सारे के सारे एटम या तो एक जैसे हों या फिर आपके कैसे हों, अलग अलग हों। और अलग अलग एटम कब होंगे, जब वो अलग अलग एलिमेंट के होंगे आपके। सो यहाँ पे देखिए अगर आप देखने की कोशिश करें, यहाँ पे मैंने एक ले रखा है एटम आपका, दो एटम ले रखे हैं। फर्स्ट इज माई ब्लू वन, द सेकंड वन इज माई ब्लैक कलर्ड वन, राइट? सो देयर व्हाट हैपेंस, दे कंबाइन टुगेदर एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसमें आपके ब्लू भी हैं और ब्लैक कलर की भी हैं, और राइट। और यहाँ पे एक और चीज़ रखी है मैंने, देखिए इन तीनों के अंदर जो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसके अंदर तीनों ब्लैक कलर्ड वाले हैं और इसके अंदर तीनों आपके ब्लू कलर्ड वाले हैं। सो द कंसेप्ट गो समथिंग लाइक कि atoms are the smallest unit which are not having a proper physical existence independent, so they will combine together and they'll form the molecule. Now molecule can be of element or a molecule can be of an element or a compound, right? Okay, now moving on further. uh, we have mixtures, right? So what are mixtures? Now we have seen about pure substances and impure substances, you can say, are comes under the category of mixture. So now the technically one question might arise कि यार अगर हम बात करें इसकी बात करते हैं, मैटर की बात करें, और मैटर में भी स्पेसिफिकली अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन बात करें प्योर सब्सटेंसेस की, देन देर आर दोस टू थिंग्स, राइट? वन इज एलिमेंट एंड अदर वन इज कंपाउंड। सो देर माइट बी कंफ्यूजन कि राइट, एलिमेंट्स के अंदर तो आपके खाली आइडेंटिकल आपकी एक टाइप के एटम्स होते हैं, राइट? तो इसके अंदर तो कोई मिलावट नहीं होगी आपकी। बट अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, राइट, कंपाउंड, राइट, अच्छा, तो इसके अंदर तो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस कैसे हो गया है ना? राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग यू अ बकेट ऑफ फुल ऑफ वाटर, आपने एक बकेट ली, उसके अंदर आपका खाली बस पानी पानी रखा हुआ है, राइट? तो आप उसे पानी को प्योर बोलेंगे या इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, राइट? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लाइक द प्योर substances and mixtures are classified on the similarity of molecules. अगर आपकी सब्सटेंस के अंदर खाली एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एलिमेंट के हों या फिर कंपाउंड के हों, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मॉलिक्यूल्स एक टाइप के हैं तो आपकी वो कैटेगरी आएगी आपकी प्योर सब्सटेंस की। अगर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, देन आप क्या बोलेंगे, उसे आप मिक्सचर बोलेंगे, राइट? अच्छा, बात समझ में होती है, चलिए, होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। Now, last topic is of matter is your mixture. And in mixture, if I'm telling, it basically means when two or more things or substances are combining together, and in any proportion, right? And any proportion, कोई दायरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस थिंग, राइट, प्लेट ऑफ सैलड, अगर आपकी एक सैलड की प्लेट है, आप अपने घर में सैलड बनाएंगे, यूल गो टू सम रेस्टोरेंट, यू विल हैव अ सैलड, और आप किसी फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं तो सैलड सबके घर में बनता है। बट ऐसा हो सकता है कि मैं अपने घर में क्या कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग मोर ऑफ कुकुम्बर,
मैं खीरा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड लेस ऑफ ऑनियन, एंड द अदर पर्सन टू हुम हाउस आई एम गोइंग फॉर लंच और डिनर, राइट? तो उनके घर में क्या हो सकता है, दे माइट बी यूजिंग टोमेटो और मोर अमाउंट ऑफ ऑनियन, राइट? तो है तो सैलेड ही, हम लोग बोल रहे हैं सैलेड, पर देर आर चांसेस की कंपोजिशन क्या है, अलग अलग हो सकती है आपकी, है ना? राइट। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एयर, बेसिकली जो आप लोग आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इट इज अगेन अ मिक्सचर, राइट? इट इज अगेन अ मिक्सचर, लाइक देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज दैट वी हैव स्टडीड लास्ट ईयर, राइट? ऑक्सीजन होती है आपकी, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हाईएस्ट मात्रा में आपकी नाइट्रोजन होती है, राइट? एंड देन देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटिंग गैसेज, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इट इज अ मिक्सचर, वाई एटमॉस्फेयर तो आपका एक ही है। सो फॉर एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय दिस कांसेप्ट, लाइक इफ यू आर लिविंग इन अ एरिया विच इज नियर टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ पे काफ़ी सारी पॉल्यूटिंग गैसेज होंगी, एंड इफ यू आर गोइंग टू अ हिल स्टेशन, राइट, वहाँ पे आप बोलते हैं ना प्योर हवा मिल रही है, प्योर हवा मिल रही है, बेसिकली वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पॉल्यूटिंग गैसेज की मात्रा क्या होगी, कम। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट वी हैव गिवन, राइट? यहाँ पे कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, बट एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है, इट माइट वेरी फ्रॉम प्लेस टू places, right? And then one more classical example is your soil, right? We'll study about this in the this year we have a chapter, right? There are different type of ingredients which are present. I shouldn't say ingredient, different type of constituent particles, and depending upon their percentage, soil is categorized into different types: sandy, loamy, clay. तो आपके अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर परसेंटेज, दैट विच माइट वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स, एंड क्लासिकल एग्जांपल आई रिमेंबर इज ऑफ सैलेड, कॉज हर जगह मिलता है, बट कंपोजिशन आपकी अलग अलग हो सकती है, राइट? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।